Good morning, dear children. Welcome back to my channel. Hope you all are safe inside your home and you all are maintaining social distance. Okay, my dear children, we don't need to afraid of the coronavirus if we are obeying all the rules to protect ourselves and our family. Okay, we don't need to afraid of the disease and the corona patients also. Okay. So my dear all, today I thought of to study about plant life. Okay, so let's start. My dear all, I have from the childhood only in my mind it's always there that plant is so selfless. Plant does not expect anything in return from us. Okay, it does not expect anything. It gives us, plant gives us leaf, fruit, wood, oxygen. The most important thing, we are surviving nowadays because of plant only, that is oxygen, fruits, so many things plant is giving us, but we are not returning anything. We are ready to give return gift in our birthday, but the plant which gives us so much important things that we are surviving in the current situation, still we are not giving in return anything to the plant. So today first we will know about how do plants reproduce. Actually आप अगर आपके चारों तरफ देखोगे, मैक्सिमम ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स. सीड्स से मैक्सिमम प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन देयर आर सम प्लांट्स आल्सो व्हिच रिप्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीफ, रूट. ओके, सम कुछ सीड से ग्रो करते हैं और कुछ बॉडी पार्ट से, जैसे कि हो गया स्टेम, रूट और लीव. ओके, सो इन द लास्ट इन दिस इज द फर्स्ट सेशन एक्चुअली. ओके, तो मैं पूरा लास्ट में कुछ होमवर्क दूंगी. नो नीड टू स्किप इट. स्किप बिल्कुल मत करना. दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू ऑल. सो वॉच द फुल वीडियो एंड डू द होमवर्क दैट आई हैव गिवन. ओके, देन सेंड इट टू मी. So first we will know about reproduction from the stem. Stem से कैसे reproduction होता है. Okay, so let's start. So I have already told you the introduction part. Now we will know how do plants reproduce through stems. Okay, stem के through plant कैसे reproduce करता है. You may have seen new shoots emerging from potatoes or ginger stored in your kitchen. Potato and ginger are underground stems. Okay, so I hope all of you have seen that potatoes and ginger. If you will keep potato and ginger for some days, then there will be some shoots, or you can tell them that sprouts. Okay, sprouts comes out from the potato and ginger. Okay, and that sprout is known as bud, and that bud we also call that bud as eyes. I have already written here. Okay, so potato और ginger क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, और पोटैटो में जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उसको बोला जाता है आइज. ठीक है, एंड ईच बर्ड कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट. और ये जो बर्ड होता है, ये हर एक बर्ड एक न्यू प्लांट ग्रो करवा सकता है. ठीक है, इफ़ यू ऑल हैव नॉट सीन, देन आई विल शो यू the picture. So these are the birds. Okay, these white parts are the bird. We call these birds as eyes. Okay, सो ये जो आइज है, इनमें से हर एक आइज में से या फिर हर एक बर्ड में से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. ठीक है, यू डोंट नीड टू बाय न्यू प्लांट्स. उसी पोटैटो, और इफ़ यू ऑल हैव नॉट सीन दोज बर्ड्स और आइज, देन यू कैन रश इन टू योर किचन, और यू कैन कीप सम पोटैटोज और जिंजर फॉर सम डेज. कुछ दिनों के लिए आप पोटैटो और जिंजर कुछ दिनों के लिए आप रख सकते हो, और उसमें से कुछ दिनों के बाद ही बर्ड्स या जिसको आइज बोला जाता है वो निकल के आएगा, और उसी में से ही आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो. ओके, सो अगर आप देखे नहीं हो तो दिस इज़ वेरी इजी. आप देख सकते हो. नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन. आई थिंक एवरीवन हैज स्टोम इन एवरीवनस होम. देयर मस्ट बी स्टोर्ड पोटैटोज इन जिंजर. तो आप देख सकते हो. ठीक है, अगर देखे नहीं हो तो स्टेम से कैसे होता है, पोटैटो और जिंजर का जो बर्ड होता है, और या फिर जिसको और या फिर आइज होता है, उसमें से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो. ठीक है,
नाउ वी विल नो अनदर प्रोसेस which is stem cutting. Stem cutting क्या होता है? Before that I want to give you some example. Actually before going to stem cutting I want to give you some more example. Potatoes और जिंजर के बारे में तो आपको पता चल गया. And another one is onion. Onion क्या है? Onion भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है. पोटैटो और जिंजर जैसा, पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम, उसी तरह ऑनियन भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ऑनियन बॉल्ब्स. अभी आप पूछोगे ऑनियन बॉल्ब क्या होता है? ऑनियन को ही ऑनियन बॉल्ब बोला जाता है. जैसे पोटैटोज में जो बर्ड होता है जो व्हाइट कलर का आपको मैं पिक्चर में दिखाई, उसको आइज बोला जाता है. ऑनियन को उसी तरह बल्ब बोला जाता है. और ऑनियन, उसी बॉल्ब में से आप न्यू ऑनियन ग्रो कर सकते हो. उसी ऑनियन को अगर आप मिट्टी खोद के, मतलब जैसे प्लांटेशन होता है वैसा करोगे, तो उसी ऑनियन बॉल्ब से न्यू ऑनियन ग्रो होगा, ठीक है. अभी पढ़ेंगे. नाउ वी कैन गो टू स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग मतलब क्या है? समटाइम्स फार्मर्स एंड गार्डनर्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ स्टेम्स. These are called stem cutting. Okay, these pieces have 1 or 2 buds on them and are called stem cutting. ठीक है. तो क्या होता है स्टेम कटिंग? मतलब कभी कभी फार्मर गार्डनर क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, रोज, ठीक है. दोज हु लव्स टू डू प्लांटेशन और दोज हु हैव डन प्लांटेशन इन द वन, मतलब एक ही बार भी अगर कोई प्लांटेशन किया होगा तो उनको ज़रूर पता होगा कि स्टेम कटिंग क्या है. रोज़ प्लांट को क्या करते हैं? रोज़ का आधा ब्रांच या फिर जहाँ पे थोड़ा सा जो वाइट कलर का होता है, बर्ड जिसको बोलते हैं, उसको काट के भी अगर आप लगा दोगे, उस आधे ब्रांच को काट के लगा दोगे, तो भी उसमें से न्यू रोज़ प्लांट होता है. यू डोंट नीड टू बाय अगेन एंड अगेन रोज़ प्लांट. एक बार रोज़ प्लांट खरीद ले, उसको अच्छा से टेक केयर किए, फिर क्या होगा, उसी रोज प्लांट में से आप बहुत सारे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो स्टेम को कट करके, ठीक है. तो यहाँ मैं लिखी हूँ, जैसे आप देखे हो, न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम ए पीस ऑफ स्टेम हैविंग 2 बर्ड्स. जिस स्टेम का 2 बर्ड होना चाहिए, 2 बर्ड होना चाहिए, 2 आइज होना चाहिए. तो उसी अगर जिस ब्रांच में, जिस स्टेम में 2 आइज होगा, उसको काट के अगर आप लगा देते हो तो उसमें से क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. नाउ वी विल नो. एग्जाम्पल मैं आपको दे दी, रोज, हिबिस्कस, ये सब है. तो नाउ वी विल गो टू रनर्स. लास्ट में मैं लिखी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, लॉन्ग स्टेम्स दैट रॉन्स along द ग्राउंड. मतलब जैसे क्रिपर्स सब होता है, क्रिपर्स. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स दैट रन along द ग्राउंड. दीज आर कॉल्ड रनर्स. रनर्स किसको बोलते हैं? जो प्लांट मिट्टी में चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है. रन्स मतलब चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं रनर्स. जैसे कि स्ट्रॉबेरी. और बहुत सारे क्रिपर्स है, जैसे कि पंपकिन क्रिपर्स आप देखे होंगे. वो भी अगर मिट्टी में आप अगर उसको मतलब खुले मतलब मिट्टी में छोड़ दिए तो वो चारों तरफ फैल जाएगा. तो ज़्यादातर क्रिपर्स जो होते हैं. तो अभी वी हैव नोन दैट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स. एक तो है अंडरग्राउंड स्टेम और स्टेम कटिंग एंड रनर्स, ठीक है. नाउ वी विल गो टू रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. ओके, so now we will know about reproduction from leaves. We have already known that how do plant reproduce from stem. Now we will know how do plant reproduce from leaves. These are the 3 points that I have written. Okay, the leaves have buds along the edges. New plants grow from these buds. When the leaves drop down to the ground, the buds grow into new plant. Okay, grow into new plants. An example, ब्रायोफिलम प्लांट. तो क्या होता है, लीव में भी बर्ड होता है, ठीक है. इन द होल चैप्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड इज वेरी मच. ओके, तो लीव का क्या होता है, लीव में जो बर्ड होता है कहाँ होता है, एलोंग द एजेस, ठीक है. लीव का जो बर्ड होता है वो एलोंग द एजेस रहता है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स. और न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है, कहाँ से ग्रो होता है, इसी बर्ड में से, ठीक है. तो then the third point is when the leaves drop down to the ground, the birds grow into new plants. जब लीव ग्राउंड में गिरता है, ग्राउंड में गिरने के बाद क्या होता है, और लीव में तो बर्ड होता है, आपको पता है, द फर्स्ट पॉइंट. ओके, तो लीव में जो बर्ड होता है, तो गिरने के बाद लीव
क्या होता है, लीव ग्राउंड में गिरने के बाद लीव में जो बर्ड होता है उसी में से न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। ओके, तो लीव में बर्ड होता है अलोंग द एजेस, न्यू प्लांट कहाँ से ग्रो होता है, इसी बर्ड में से, और इसी बर्ड में से ग्रो होता है तो कैसे होता है, जब लीव मिट्टी में गिरता है, मिट्टी में गिरने के बाद उसी बर्ड में से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है। द एग्जाम्पल इज ब्रायोफिलम प्लांट्स। ओके, एंड आई कैन शो यू द पिक्चर ऑल्सो। ओके, आई एम शोइंग यू द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। ओके, आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि बर्ड्स कहाँ से होता है, देखो ये सब बर्ड्स, ठीक है, ये है, ये क्या है, ब्रायोफिलम लीफ है। उसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ भी है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो होप you all have understood. Now we will, after this we will know reproduction from root. Stem finished, leaf finished. Now we will go to reproduction from roots. So my dear subscribers, now we will know how do plants reproduce from root. So roots of some plants can produce new plants. For example, carrot and स्वीट पोटैटो। तो कुछ प्लांट का रूट जो होता है उसमें से भी न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, बट आई हैव मेड दिस टू ड्राइंग, होप यू ऑल कैन अंडरस्टूड। अगर इस ड्राइंग में आप समझ नहीं पा रहे हो तो यू कैन ओपन योर बुक, पेज नंबर 32, देयर इज बेटर डायग्राम। ओके, सो यू कैन वॉच दैट। तो यहाँ मैं कुछ कोशिश की हूँ डायग्राम बनाने के लिए, सो दैट आई कैन लेट यू नो दैट हाउ डू रूट्स रिप्रोड्यूस, हाउ डज रूट्स रिप्रोड्यूस प्लांट्स। तो देखिए, मैं आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का मैं डायग्राम बनाई हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप सबसे पहले एक जाल लोगे, ठीक है। उस जार में आप क्या करोगे, फुल ऑफ वाटर, मतलब उस जार को पूरा वाटर, मतलब जितना उस जार में पानी रह सकता है पूरा फुल करेंगे आप। फुल करने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे आप कुछ उस स्वीट पोटैटो में, जैसे मैं टूथपिक यूज की हूँ, जैसे कि यहाँ आप देखिए ये टूथपिक यूज की हूँ, उसी तरह कुछ टूथपिक सबसे पहले जाम में वाटर लेना है। वाटर लेने के बाद स्वीट पोटैटो को अंदर डालना है। देखिए, पूरा स्वीट पोटैटो नहीं डालना है, कितना मैं अंदर की उतना ही, देखिए उतना ही आपको अंदर डालना है। उसके बाद स्वीट पोटैटो में कुछ टूथपिक आप लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे, कुछ टूथपिक, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है उसी तरह कुछ टूथपिक लगाओगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो कैसा हो जाएगा, पूरा ऐसा, देखिए रूट हो गया है। यहाँ पे रूट है क्या, रूट नहीं है, लेकिन इन द सेकेंड डायग्राम आफ्टर सम डेज रूट बन गया है, न्यू प्लांट ग्रो हुआ है। तो प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी इजी टू सी इन योर होम, ठीक है। यू कैन मेड वीडियो ऑफ दिस ऑल्सो एंड यू कैन सेंड मी, आप मुझे भेज भी सकते हैं। तो क्या करोगे आप लोग, एक जाम लोगे, एक जाम या फिर एक जार, उसके अंदर क्या करोगे, पूरा जितना पानी रह सकता है डालोगे। उसके बाद स्वीट पोटैटो को पूरा अंदर नहीं घुसाना है, जितना मैं अंदर की हूँ उतना ही अंदर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्वीट पोटैटो में कुछ टूथपिक लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं 4 ठो लगाई हूँ, उसी तरह कुछ टूथपिक लगा देंगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद वो कैसा बन जाएगा, पूरा ऐसा। ओके, यू कैन प्रैक्टिकली सी दिस। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे रूट में से न्यू प्लांट ग्रो होता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड। आफ्टर दिस वी विल नो हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। So now we will know about how do plants reproduce from seeds. Seeds are usually found inside the fruit. Seeds are of different shape and size. New plants grow when seeds fall on the soil and germinate. Okay.
सीड्स आर यूजुअली फाउंड इनसाइड द फ्रूट। सीड ज़्यादातर क्या होता है, फ्रूट के अंदर ही, ठीक है, फ्रूट के अंदर ही सीड ज़्यादातर रहता है। और यू आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है, बहुत सारे सीड होता है। एट द सेम टाइम इन मैंगो में क्या होता है, एक ही होता है। So there are different amount, shape and size of seed inside a fruit। एक फ्रूट के अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक ही शेप एंड साइज या फिर एक ही अमाउंट का सीड होता है, नहीं। कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, बहुत सारे सीड होते हैं, और उस सीड को अगर आप उस सीड को क्या करोगे, अगर आप मिट्टी में लगाओगे तो क्या होगा, जर्मिनेट, ठीक है। जर्मिनेट मीन्स द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड। सीड जब प्लांट में, सबसे पहले आप क्या करोगे, मिट्टी को खोदोगे, खोदने के बाद उसमें सीड लगाओगे, फिर पानी डालो, ये सब करने के बाद जब वही छोटे सीड में से बेबी प्लांट निकलता है और वही बेबी प्लांट बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेट। एक छोटे से सीड से बेबी प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, जर्मिनेट उसको बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट शेप एंड साइज एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ, डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट फ्रूट। डिफरेंट अमाउंट का सीड डिफरेंट शेप एंड साइज का क्या होता है, फ्रूट में रहता है, ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है। सो आफ्टर दैट वी विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का अगर हर एक फ्रूट में अलग अलग सीड रहता है, अलग अमाउंट का रहता है, तो ऑल्दो वी कैन नॉट काउंट द सीड, ठीक है। अगर काउंट भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक वाटरमेलन में 20 सीड निकला है तो दूसरे वाटरमेलन में 20 निकलेगा, नो, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट मतलब सेम टाइप के फ्रूट्स में भी डिफरेंट सीड होता है। सो वी कैन नॉट काउंट द सीड, बट वी कैन आई कैन टेल यू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिप्रोडक्शन पार्ट। ओके, how do plant reproduce from leaf, how do plant reproduce from stem, how do plant reproduce from root, seed, stem, leaf, root, seed. We have completed the reproduction part. Now I am going to tell you the structure of a seed. एक seed का structure क्या कैसे होता है उसके बारे में now I am going to tell you. Okay. So now we will know the structure of a seed. So एक seed का structure कैसे होता है? If you want to know, then take a few seeds of चना और बीन, ठीक है, बीन या चना का कुछ सीड लो, उसको तोड़ने के लिए कोशिश करो। उसको अगर आप तोड़ने के लिए कोशिश करोगे, यू विल रियलाइज दैट इट इज सो हार्ड। चना और बीन का जो सीड है वो बहुत हार्ड है तोड़ने के लिए। लेकिन इफ यू विल सोक दो सीड इन वाटर, अगर आप उसको भिगो के रख दोगे वाटर में, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इट विल बी सॉफ्टन, ये क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकोगे, इजीली चना और बीन के जो सीड होते हैं ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो सीड क्या होता है, सीड क्योंकि सीड में छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, उसके वजह से सीड सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। ओके, आई विल शो यू द डायग्राम, नोट्स, एवरीथिंग। So now we will know the structure of a seed. Okay, I have tried my level best to draw the diagram and I have drawn this diagram. Okay, and I have written some points. So अभी हम structure of a seed पढ़ेंगे। A thick outer covering called the seed coat protects all seeds. I have already written the first point that seed has thick outer covering called the seed coat which protect the plant। मतलब seed का जो outer covering है, यहाँ पे देखिए मैं रेड कलर में की हूँ। ओके, सीड का जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है, सीड कोट बोला जाता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि इफ़ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि बनाना हो गया, वाटरमेलन हो गया, उनका बाहर एक कवर रहता है, अंदर फ्रूट रहता है कि नहीं, जैसे कोकोनट हो गया, तो उनका काम क्या होता है, अंदर जो चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। उसी तरह सीड कोट का काम क्या है, प्रोटेक्ट द प्लांट्स, ठीक है। Then the second point is on one side of the seed there is a scar. Scar मतलब was attached to the fruit. फ्रूट के साथ जो अटैच होके रहता है उसको बोला जाता है स्कार, ठीक है।
On top of the scar is a small hole. This allows entry of water to the seed. और स्कार के ऊपर, स्कार के अगर यहाँ पे स्कार रहा जो कि अटैच होके यहाँ पे स्कार रहा, तो क्या होगा, स्कार को स्कार ऑन द टॉप ऑफ द स्कार इज ए स्मॉल होल. उसी स्कार के यहाँ पे अगर स्कार रहा तो टॉप में ये वाला है होल. ठीक है, ये स्मॉल होल का क्या काम है, इट अलाउज द वाटर टू एंटर द सीड, टू एंटर इनसाइड द सीड. ओके, सीड के अंदर पानी एंटर करने के लिए ये होल अलाउ करता है, क्योंकि आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए तो और प्लांट ग्रो ही करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, तो वो स्मॉल होल का काम वही है. फिर हम पढ़ेंगे फिर अगर आप सीड कोट को हटा दोगे, जैसे कि यहाँ ये सीड कोट को हटा दोगे तो आप क्या देखोगे, If seed coat is removed, two seed leaves called cotyledons. cotyledons मतलब क्या है, कोटिलीडन मतलब जो अगर आप सीड कोट को हटा दे रहे हो तो उसके अंदर आप देखोगे टू सीड लीव्स, छोटा छोटा सा जो लीव्स उसको बोला जाता है कोटिलीडन्स. ठीक है, बिटवीन द कोटिलीडन इज द बेबी प्लांट. वो जो छोटा छोटा लीव्स होता है उसके अंदर, आई हैव नॉट ड्रॉन दैट डायग्राम, अगर आप लोगों को देखना है तो पेज नंबर 33 में है, आप लोग देख सकते हो. तो जब आप सीड कोट से उसका कवर सीड कोट को रिमूव कर रहे हो तो उसके अंदर आप देखोगे कटिलीडन्स. ठीक है, फिर कटिलीडन के अंदर क्या देखोगे, एम्ब्रॉय. यहाँ पे मैं बनाई हूँ. ठीक है, फिर क्या देखोगे, एम्ब्रॉय. द एम्ब्रॉय कंटेन्स ए बेबी सूट एंड ए बेबी रूट. तो बेबी प्लांट को बोला जाता है एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय में क्या क्या रहता है, एम्ब्रॉय में रहता है आपका बेबी सूट एंड ए बेबी रूट. छोटा सा सूट मतलब छोटा सा जो पत्ता होता है छोटा सा निकल के आया होगा, और क्या आया होगा, रूट. ठीक है, और रूट, छोटा सा रूट. The seed leaves protect the baby plant. They also store food for the baby plant. अच्छा, कोटिलीडन का काम क्या है, the work of cotyledon is to store food for the leaf. लीफ के लिए खाना स्टोर करना कोटिलीडन का काम होता है. ठीक है, all seeds do not have two cotyledon. Some such as corn have only one cotyledon. जैसे कि कोटिलीडन क्या होता है, कोटिलीडन हर लीव में दो नहीं होता है, कोई जैसे कि कर्ण हो गया, कर्ण में क्या होता है, एक ही कोटिलीडन रहता है. ठीक है, तो सारे प्लांट में सारे सीड में दो कोटिलीडन नहीं रहते हैं, कोई सीड में एक ही कोटिलीडन रहता है, जैसे कि कॉर्न में क्या होता है, एक ही कोटिलीडन रहता है. और कोटिलीडन का काम क्या है, ये बेबी प्लांट के लिए खाना स्टोर करके रखता है. ठीक है, यू कैन राइट दिस पॉइंट ऑल्सो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, hope you all have understood the structure of a seed. Now you will know about what do seeds need for germination. Okay, so now we will know what do seeds need for germination. Okay, seed को क्या क्या चाहिए germination के लिए. When seeds get enough water, air and warmth, they grow into new plants. Okay, सीड को क्या क्या चाहिए, वाटर, एयर एंड वार्मथ, ये तीनों चीज़ एक सीड को चाहिए बेबी प्लांट में ग्रो करने के लिए. अगर ये तीनों चीज़ में से भी कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगा तो क्या होगा, सीड ग्रो नहीं कर सकता एक बेबी प्लांट में. तो क्या क्या चीज़ चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए, वाटर, एयर एंड वार्मथ, ये तीनों चीज़ कंपल्सरीली चाहिए. ठीक है, और जर्मिनेशन का मतलब क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. एक बेबी प्लांट का एक सीड से जब बेबी प्लांट निकलता है, ग्रो करता है, तो उसको बोला जाता है जर्मिनेशन. और बेबी प्लांट को क्या बोला जाता है, सीडलिंग. बेबी प्लांट को क्या बोला जाता है, सीडलिंग. ओके ना, और सीड को जो खाना चाहिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कोटिलीडन्स. कोटिलीडन्स में क्या होता है, इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट. ये क्या करता है, बेबी प्लांट को जो फूड का ज़रूरत होता है ग्रो करने के लिए, तो ये कोटिलीडन से कलेक्ट करता है. ठीक है, नाउ वी विल नो अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. फर्स्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. अगर आप लोगों को मतलब किसी एक को भी, अगर फॉर एन एग्जाम्पल राम को एक पैकेट बिस्किट देने से उसका पेट भर जाता है. ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी, वो एक पैकेट बिस्किट 5 जन को, मतलब वही एक पैकेट ही रहेगा, 5 जन को 5 पैकेट बिस्किट नहीं दूंगी, वही एक बिस्किट 5 जन को दूंगी, तो क्या होगा, किसी का भी पेट नहीं भरेगा,
है कि नहीं। उसी तरह जब क्या होता है, सीड ग्रो करता है, उसको जो वाटर, उसी तरह एक सीड को ग्रो करने के लिए जितना वाटर, सनलाइट, एयर, वार्मथ ये सब चाहिए, क्या होगा अगर आप क्या करोगे, प्लांट को पास पास में, इसीलिए बोला जाता है मिट्टी में अगर आप प्लांट लगा रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस में लगाओ, वरना क्या होगा, दे हैव टू फाइट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, उनको एक सीड को दूसरे सीड के साथ मतलब फाइट करना पड़ेगा, और उनको प्रॉपर जितना विटामिन प्रोटीन चाहिए, जितना सनलाइट, वाटर, मिनरल चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने से क्या होगा, एक हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसी वजह से क्या बोला जाता है, अगर आप प्लांट मतलब अगर आप सीड लगा रहे हो तो डिस्टेंस में लगाओ, पास पास में नहीं लगाना, ठीक है। एक डिस्टेंस में स्कैटर करके चारों तरफ फैला के लगाओ, थोड़े डिस्टेंस में लगाने के लिए बोला जाता है। और सीड डिस्पर्सल किसको बोला जाता है, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से आप क्या करोगे, सीड को सीड को थोड़ा सा डिस्टेंस में आप लगाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट प्लांट के पास ही पूरा लगाना, नहीं, मतलब थोड़ा डिस्टेंस में लगाने को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। पेरेंट प्लांट से सीड को थोड़ा डिस्टेंस में लगाने को बोला जाता है सीड डिस्पर्सल, ओके। अच्छा, write your homework. I am giving you 4 questions. The first question is, how does a ginger plant reproduce? How does a ginger plant reproduce? Name 3 plants that reproduce through stem cuttings. Name 3 plants that reproduce through stem cuttings. What is the function of cotyledons? What is the function of cotyledons? Why cannot a dry seed germinate? Why cannot a dry seed germinate? Okay, write these 4 questions and send it to me in your group. Okay. और सीड डिस्पर्सल में कौन कौन है एजेंट, कौन कौन हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल करने के लिए, विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, ठीक है। कौन सा विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर, ये फ्रूट, ये सब के वजह से क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। सीड्स दैट आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट. Dandelion and cotton seeds have long and fine hair surrounding them. This makes it easy for the wind to carry the seed away. Some seeds such as maple and drumstick have wings attached to them which help them float in air. तो विंड डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब जैसे कि आप डैंडेलियन, फॉर एन एग्जाम्पल डैंडेलियन जो होता है उसका क्या होता है, वो बहुत हल्का होता है। जो भी सीड बहुत हल्का होता है, विंड तो ऐसा नहीं कर पाएगा, मैंगो को तो उड़ा के नहीं ले जा पाएगा ना, है कि नहीं। लेकिन जो हो गया आपका डैंडेलियन, ये क्या होगा, जो हल्का होगा वो क्या होगा, विंड के वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस फ्लोट करके जा सकता है, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस विंड के वजह से वो जा सकता है, ठीक है। और क्या है, वाटर डिस्पर्सल। वाटर डिस्पर्सल कैसे होता है, सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन नियर फ्लोइंग वाटर मे बी डिस्पर्स्ड बाय वाटर. These plants have fruits and seeds that can float in water. For example, water lily. The coconut fruit has air trapped in between its husks. This makes it light and easy to float. Water carries these fruits. अच्छा, अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या करोगे, कोकोनट लेना, वाटर में डाल के देखोगे, इट विल फ्लोट। कोकोनट फ्लोट करता है, ठीक है। वाटर डिस्पर्सल क्या होता है, विंड डिस्पर्सल तो आप समझ गए, हवा के वजह से जो सीड एक जगह से दूसरे जगह कैरी अवे होके चला जाता है उसको बोलते हैं विंड डिस्पर्सल। वाटर डिस्पर्सल मतलब कभी कभी क्या होता है, हम प्लांटेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, वाटर के पास में ही मतलब कोई वाटर के पास में भी करते हैं। अगर बाई चांस कोकोनट गिर गया तो फ्लोट होके क्या होगा, वाटर में फ्लोट होके जाके दूसरे जगह पहुंच जाएगा, जैसे वाटर लिली, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं जो वाटर के वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर आया एनिमल डिस्पर्सल, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या एनिमल, ह्यूमन बींग, एनिमल, बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं, मतलब जो फ्रूट होता है, ठीक है, फ्लेशी फ्रूट होता है जैसे मैंगो, पपाया, गुआवा, ये सब को क्या करते हैं हम लोग भी खाते हैं और फिर या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, नहीं तो कहीं जहां पर खाते हैं वहीं पे गिरा देते हैं। सीड जो होता है, मैंगो खाते हैं, मैंगो के अंदर जो होता है उसको फेंक देते हैं, उसी में से क्या होता है न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है। तो कैसे हेल्प करते हैं हम, क्या एनिमल, बर्ड और प्लांट कैसे हेल्प करते हैं, वो लोग मतलब प्लांट से, सॉरी, फ्रूट से निकाल के, फ्रूट का जितना होगा जैसे मैंगो, पपाया, वो खा लेते हैं, उसके बाद जो सीड होता है उसको वहीं पे गिरा देते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं, ठीक है। तो उनमें से और कोई कोई सीड भी होते हैं, जैसे बेरी हो गया, उसका सीड कैसे आता है, उसका सीड हमारा जो मतलब वेस्टेज निकलता है, लैक्टिन हो गया, ये सब में क्या होता है, उसका सीड भी अगर हम बाई चांस उसको क्या किए हैं, बाई चांस हम नहीं फेंक के अंदर ही ढकेल दिए हैं, तो क्या होगा, हम जब लैक्टिन करेंगे तो उसी में से वो निकल जाएगा, वो इतना छोटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह एनिमल सब क्या करते हैं, एनिमल, बर्ड, प्लांट, सॉरी प्लांट नहीं, एनिमल, बर्ड और ह्यूमन बींग, ये सब सीड डिस्पर्सल में इस तरह का हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसी सीड में से, जिसको फेंक दिए होंगे, उसी सीड में से न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। नाउ वी विल नो एक्सप्लॉयजन ऑफ फ्रूट. Fruits of plants such as balsam, pea, geranium and touch-me-not burst upon or explode when they are dry, scattering the seed away from the mother plant. ठीक है। एक्सप्लॉयजन ऑफ फ्रूट मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे पी आप खाए होंगे, ठीक है, पी में क्या होता है, वो सब मतलब आप अगर वो सूख जाएगा, सूख जाने के बाद वो खुद ही फट जाता है, उसमें से सीड निकल के आता है, ठीक है। तो एक्सप्लॉयजन मतलब वो जो मतलब कोई भी चीज फट जाना, ठीक है, बर्स्ट हो जाना। तो पी जो होता है वो अगर आप वो बहुत दिनों तक सूख जाएगा तो उसमें से सीड निकल के क्या होगा, जमीन में खुद व खुद गिर जाएगा, फिर उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विंड डिस्पर्सल, जो सीड हल्का होता है वो विंड के वजह से कैरी अवे होकर दूसरे प्लेस चला जाता है। वाटर डिस्पर्सल, जब वाटर लिली हो गया, कोकोनट, पानी में कुछ गिरता है सीड, तो पानी के फ्लो के वजह से वो क्या होगा, दूसरे जगह में जाके मतलब स्कैटर हो जाता है सीड। फिर एनिमल डिस्पर्सल, जो हम खाते हैं उसका जो सीड होता है उसको इधर उधर फेंक देते हैं। एक्सप्लॉयजन ऑफ फ्रूट मतलब जब कोई होते हैं, जैसे पीज हो गया, वो क्या होगा, सूख जाने के बाद उसमें से सीड निकल के नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट अप टू डिस्पर्सल ऑफ सीड, ओके। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल नो क्रॉप्स, ओके, क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे। इन दिस सेशन वी विल नो दिस मच ओनली। Hope you all understood the video, and thank you so much for watching the video. And if you have liked the video, then don't forget to like, share and subscribe. Okay, thank you all of you.